بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں دانش ملک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک وطن کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے، مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے اور اہل فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کے خبرنامے کی جانب۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے حلقہ برنالہ ابوالہ کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے سابق امیدوار اسمبلی چودھری نصر اللہ مرحوم کے بھائی چودھری ثناء اللہ اور صاحبزادے چودھری فہد نصر، چودھری شہراز انور اور چودھری ولید ظفر شامل تھے۔ اس موقع پر صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کہنا تھا کہ چودھری نصر اللہ ان کے درینہ ساتھی اور حلقہ برنالہ سے امیدوار اسمبلی تھے، ان سے اچھا تعلق تھا جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ صدر آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ میرپور ڈویژن کے تمام حلقوں کے لوگوں سے رابطے میں ہوں، لہٰذا آپ لوگ بھی برنالہ، ابوالہ، آہی، ملوٹ اور دیگر جگہوں سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اس موقع پر وفد کے اراکین نے صدر ریاست کو یقین دلایا کہ چودھری نصر اللہ مرحوم کی طرح وہ بھی صدر آزاد کشمیر کا ساتھ دیتے ہوئے اس تعلق کو آئندہ بھی نبھائیں گے۔ اس موقع پر برنالہ ابوالہ کے وفد نے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو برنالہ کے دورے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی اور کہا کہ وہ بہت جلد حلقہ برنالہ کا دورہ کریں گے۔ روزنامہ جموں کشمیر کی سالگرہ کی تقریب میں سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان، سابق وزیر اعظم اور صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی، اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی، کیک کاٹا اور مبارکباد پیش کی۔ روزنامہ جموں کشمیر کی 19ویں سالگرہ کی تقریبات کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ روزنامہ جموں کشمیر کے مرکزی دفتر اسلام آباد میں آج سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان، سابق وزیر اعظم صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی، اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد، پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر محمد حمید پوٹھی، سابق وزیر اطلاعات چودھری رفیق نیر، مسلم کانفرنس کی سینئر رہنما محروم نساء، پی ٹی آئی رہنما اور سابق امیدوار اسمبلی حلقہ کھاوڑہ مظفرآباد راجہ منصور خان، امیدوار اسمبلی نیلم راجہ الیاس خان، مشہور کاروباری شخصیت سردار شاہزیب خان، سردار اظہر خان، وائس چیئرمین ضلع کونسل باغ راجہ فہیم فاروق، سابق امیدوار اسمبلی نیلم قاضی اسرائیل، انصاف لائرز فورم آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر اسرار احمد، چودھری خالد یوسف ایڈوکیٹ، جنید پنڈت ایڈوکیٹ، سردار ماجد شریف، سردار حبیب احمد، تحریک انصاف کی رہنما خولا خان، شمائلہ حیدر، پی ٹی آئی ضلع باغ کے جنرل سیکرٹری راجہ مسعود الرحمان ایڈوکیٹ، راجہ شعیب آزاد، قاضی اکرام، مسلم کانفرنس کے رہنما ڈاکٹر عابد عباسی، راجہ جبار، ممبر ضلع کونسل کوٹلی جمیل چوہان، حبیب چوہان، ملک انصر سہیل، ساجد اسلم، چودھری ندیم قاسمی، راجہ عقیل خان سمیت مسلم کانفرنس اور تحریک انصاف کے کارکنوں نے شرکت کی۔ تقریب آمد پر تمام مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سابق وزراء اعظم نے چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر عامر محبوب اور اسٹاف کے ہمراہ کیک کاٹا اور عامر محبوب سمیت پوری ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور دلیرانہ صحافت پر خراج تحسین پیش کیا۔ سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم کانفرنس کا اس موقع پر کہنا تھا کہ روزنامہ جموں کشمیر نے ہمیشہ سچ کا علم بلند کیا، جس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ روزنامہ جموں کشمیر دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، جبکہ سابق وزیر اعظم اور صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے بھی روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر اور سٹاف کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ روزنامہ جموں کشمیر کی 19ویں سالگرہ کی 8ویں روز منعقدہ تقریب میں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے رہنماؤں کی آمد، سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی، سردار عتیق خان اور اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق کی آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر عامر محبوب کو مبارکباد دی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آج روزنامہ جموں کشمیر کی 19ویں سالگرہ ہے۔ میں دل کی گہرائی سے روزنامہ جموں کشمیر کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، چودھری عامر محبوب صاحب کو، راجہ کفیل صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے گزشتہ 19 سال سے جرأت مندانہ اور بے باک اور دیانتدارانہ صحافت کے لیے کام کیا ہے اور ملک کے کونے کونے گوشے سے ایسے عام مسائل کو اجاگر کیا ہے
जिनका ताल्लुक आम आदमी की ज़िंदगी के साथ था, आम लोगों के मसले मसाइल थे, और उनको हाईलाइट करके हल करवाने में इन्होंने अपना बड़ा रोल अदा किया है। इसी तरह जहाँ तक तहरीक आज़ादी कश्मीर का ताल्लुक है, रोज़नामा जम्मू और कश्मीर ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में भी उसकी फ़रोग़ में बहुत मुस्बत किरदार अदा किया है। फिर इसी तरह नज़रियाती एतबार से रोज़ाना जम्मू और कश्मीर ने नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हवाले से मुजाहिद अव्वल की मौजूदगी में, ज़िंदगी में और उनके बाद उन्होंने बहुत भरपूर तावन हमारे साथ जारी रखा है। आज इंतहाई खुशी और मसरत का दिन है कि जम्मू कश्मीर जो हमारा एक कौमी अखबार है उसकी 19वीं सालगिरह है, और अखबार ने जहाँ पाकिस्तान पंजाब से लेके खिदमत की है, लोगों को अवेयरनेस दी है, वहाँ आज़ाद कश्मीर में बिलखसूस तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में जम्मू कश्मीर का बड़ा अहम रोल है। तो इस मौके पर मैं आमिर महबूब साहब, राजा कफील साहब और उनकी पूरी टीम को, और जो उनका नेटवर्क पूरा फैला हुआ है जहाँ कहीं भी, सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह रोज़नामा जम्मू कश्मीर 19 साल का हो गया, यानी टीन एज ये आज मुकम्मल कर चुका है जी। और ये वो एज होती है कि जब आदमी टीन एज 13 से 19 के दरम्यान होता है तो वो समझदार होना शुरू हो जाता है। तो मैंने इसी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जम्मू कश्मीर अब समझदारी के जो मेराज है क्लाइमेक्स उसमें पहुँच गया है। जम्मू कश्मीर का आज़ाद कश्मीर की सियासत, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से और फिर तामीर और तरक्की के हवाले से, वो से मेगा स्कैंडल्स को बेनकाब करने के हवाले से एक बड़ा किरदार रहा है। अगरचे सोशल मीडिया ने अखबारात की आदत लोगों में कम डाल दी है, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर अगर 5-10 अखबार पढ़े हो तो अगर आपने एक अखबार खरीदा है तो जम्मू कश्मीर की तरफ हाथ जाता है, क्योंकि इसकी सुर्खियों में एक किस्म का सब नफ्स मजमून होता है और इसकी बात को हुकूमत भी, अपोजिशन भी और सिविल सोसाइटी भी बड़ी अथेंटिक तौर पे लेती है कि जम्मू कश्मीर में ये खबर आई है तो इसकी हुकूमत में हो तो इंक्वायरी कराई जाती है और अगर अपोजिशन में हो तो उसको मजीद आगे टेकअप किया जाता है। मैं अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ की जानब से इन्हें जम्मू कश्मीर की पूरी इंतजामिया को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की तरफ से आमिर महबूब साहब को और उनकी पूरी टीम को 19वीं सालगिरह के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर की सियासत में, आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में वो वाहिद अखबार है जो बुनियादी मसाइल को उठाता है। बल्कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में नहीं बल्कि ओवरसीज़ कश्मीरियों को भी जम्मू कश्मीर ने एक आवाज़ दी और आज 19वीं सालगिरह के मौके पर हम उन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं। आज जम्मू कश्मीर की 19 सालगिरह है जो आमिर साहब के साथ आज़ाद कश्मीर की बाकी लीडरशिप के साथ मिलकर हमने केक काटा है। हम आमिर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, राजा कफील साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज 19वीं सालगिरह जम्मू कश्मीर की 19वीं सालगिरह के मौके पर मैं आमिर महबूब साहब, चीफ एडिटर राजा कफील साहब, शहजाद राठौर साहब और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे ख्याल से जो आज़ाद कश्मीर की सहाफ़त में ये एक बेमिसाल जो है हमारे सामने जो इनकी परफॉर्मेंस है, और इन्होंने जिस तरह एक छोटे से दरख्त को तनावर दरख्त बनाया है और आज़ाद कश्मीर में सहाफ़त को एक्चुअली अगर मैं समझता हूँ कि अगर जो इंट्रोड्यूस कराने वाले और सहाफ़त को एक जदीद तरह में लाने वाले लोग हैं, और मैं इनको खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। मैं आज जम्मू और कश्मीर रोज़नामा अखबार की 19वीं सालगिरह के मौके पे अखबार के एडिटर मोहतरम अपने भाई आमिर महबूब साहब, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए, और यकीनन आपने 19 साल तक आज़ाद कश्मीर के अंदर मजलूम तबका के लिए बड़ी जद्दोजहद की, और मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि आप इसी तरह अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। मैं आमिर साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारक देते हुए और ये दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में इनके अखबार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। जम्मू कश्मीर की 19वीं सालगिरह के मौके पर मैं इस मौके पर मोहतरम आमिर महबूब साहब को, उनकी सारी टीम को
मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 19 साल का उनका सफ़र था आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने बहुत मेहनत की और बड़ी मुश्किल वक्त में उन्होंने जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि आपके साथ और सच के साथ खड़े रहे, इस पर मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आज जम्मू कश्मीर अखबार की इशाअत को 19 साल मुकम्मल होने पर जम्मू कश्मीर अखबार की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ आमिर महबूब साहब को, जम्मू कश्मीर अखबार को और पूरी टीम को कि जिस तरह से ये हर छोटे से छोटे जो वहाँ पे इश्यूज हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं, स्पेशली जो कश्मीर इशू को के ऊपर जितना काम किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, खास करके आमिर भाई को, चाचा कफील साहिब को और शहजाद राठौर साहब को। ये मेरे सारे मेंटर भी हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 1.5 साल पहले मैंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर रोजनामा में अपना जम्मू कश्मीर डिजिटल में अपना शो अगर मैं कहूँ के नाम से एक सफ़र शुरू किया था। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन ऑफ कोर्स अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से मैं रिसेंटली यहाँ पे नहीं आ पाया। ये एक ऐसा चैनल है जिसने कश्मीर को एक आवाज़ दी है और हमेशा वफाक में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम को अपनी आवाज़ सुनने का और लोगों की तज्ज़िया निगारी का मौका मिलता है। आज जम्मू कश्मीर की 19वीं सालगिरह में आप सारी जम्मू कश्मीर की जो टीम है यहाँ पे जो काम कर रही है दिन रात, में उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि ये जो अखबार है इसने सिर्फ यहाँ के नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर की आवाज़ बनी। वहाँ पे जो भी सूरत हाल है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम है भारत की तरफ से और जो रियासती दहशतगर्दी भारत में हो रही है, तो जम्मू कश्मीर जो अखबार है इसने सफ़े अव्वल पे उनको बेनकाब किया। जम्मू कश्मीर न्यूज़पेपर की 19वीं सालगिरह है और मैं सबसे पहले जनाब आमिर महबूब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, राजा कफील साहब को करता हूँ और बाकी के जितना भी स्टाफ है उसको करता हूँ। और मैं थोड़ी सी आपको इसके बैकग्राउंड बताऊँ कि आमिर महबूब साहब से मेरी जो इंटरेक्शन है वो तकरीबन 20-22 साल से है। तो वो अक्सर हम मिला करते थे जब वैसे सुल्तान प्राइम मिनिस्टर से, उसके बाद इंटरेक्शन जब होती थी तो मुझे अज़हर शाह साहब कहते थे जी कि ये आमिर महबूब साहब हैं। तो मैंने उन्होंने कहा जी कि ये अखबार शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा जी कि आमिर साहब आप कब ये अखबार शुरू करेंगे? तो ये कहा करते थे कि जब तुम मेंबर कश्मीर कौंसिल बनोगे। और अल्लाह की करनी ऐसे हुई 7-8 साल गुजर गए और ये एग्जैक्ट उनका कहा हुआ वही साबित हुआ कि 17 जनवरी 2006 को मैं मेंबर कश्मीर कौंसिल बना और 17 जनवरी 2006 को जम्मू कश्मीर का पहला दिन था, पहली पब्लिश थी। और इनकी मेन जो हेडिंग थी वो यही थी कि चौधरी हमीद पोठी मेंबर कश्मीर कौंसिल बन गए। जी हाँ। रोजनामा जम्मू कश्मीर की 19वीं सालगिरह पर मैं चीफ एडिटर जनाब आमिर महबूब, एडिटर जनाब शहजाद राठौर, ग्रुप एडिटर जनाब राजा कफील खान साहब और पूरी जम्मू कश्मीर की टीम और जम्मू कश्मीर डिजिटल जितना भी है उस सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं रोजनामा जम्मू कश्मीर की 19वीं सालगिरह के मौका पर जो है चीफ एडिटर रोजनामा जम्मू कश्मीर आमिर महबूब साहब को, शहजाद राठौर साहब को, राजा कफील साहब को और जम्मू कश्मीर की पूरी टीम को जो है मुबारकबाद दूंगा। रोजनामा जम्मू कश्मीर 19 साल से जो है वो आज़ाद कश्मीर के हर तबके की न सिर्फ नुमाइंदगी कर रहा है बल्कि आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं उनकी तरफ भरपूर तवज्जो जो है वो दी जा रही है। और एक नया एडिशन जो जम्मू कश्मीर ने टीवी का जो एडिशन नया दिया है, मैं समझता हूँ उसमें जो डिबेट होती है उससे भी बड़े जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो खबरें अखबारात से बढ़ के जो है वो टीवी के इन प्रोग्रामों में जो है वो लोग देखते हैं और सुनते भी हैं। रोजनामा जम्मू कश्मीर को 19 साल इनकी जो 19वीं सालगिरह है इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और जुमला स्टाफ जितना भी है उन तमाम तर लोगों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। इंतहाई प्रोफेशनल लोग हैं और सबसे अच्छी और सबसे पायदार और रिलायबल सोर्सेज के थ्रू इनकी जो है ना अखबार की खबरें होती हैं। आज तक हमने इस चीज़ में कोई फेक चीज़ नहीं पाई। तो आगे भी इन फ्यूचर इनके लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को इसी तरह कायम दायम रखे और ये इसी तरह फूलता फलता रहे। महबूब साहब और उनकी पूरी टीम जम्मू कश्मीर रोजनामा जम्मू कश्मीर की पूरी टीम को 19वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। रोजनामा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर डिजिटल की चीफ एडिटर जनाब आमिर महबूब साहब, राजा कफील साहब और शहजाद राठौर साहब, उनकी पूरी टीम को हम इस सालगिरह पर मुबारकबाद देते हैं
और आज़ाद कश्मीर रियासत उसके अवाम की तरफ से हम एक जानदार, तवाना और मजबूत और अवामी जो मसाइल उनके लिए आवाज़ उठाने पर भरपूर उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। खबरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने चढ़ोई का दौरा किया। वज़ीर सेहत ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की, जबकि इस मौके पर मुशीर हुकूमत सबीहा सिद्दीक भी उनके हमरा थीं। वज़ीर सेहत डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने सबसे पहले इखलास स्कूल के अस्पताल प्रोग्राम में शिरकत की। बाद अज़ां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम डायलिसिस सेंटर का दौरा किया, मरीजों से मुलाकात की और अस्पताल की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग ली, जिस पर मरीजों ने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर हुकूमत डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने अस्पताल डायलिसिस सेंटर के हवाले से अहले इलाका चढ़ोई की तरफ से किए गए इक़दामात को सराहा और डायलिसिस सेंटर की बेहतरी और सहूलियात के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। इसके बाद वज़ीर हुकूमत ने अंजुमन ताजरान की तरफ से दिए गए ज़ोहराने और इमरान भट्ट और डॉक्टर मतलूब राजा की जानिब से मुनक्किद किए गए प्रोग्राम्स में भी शिरकत की। एसएसपी भिंबर चौधरी मोहम्मद अमीन ने कहा है कि मंशियात फरोशी और जराइम के खात्मे के लिए कोई दबाव नहीं है। नौजवान नस्ल को तबाह करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए हम वक्त तैयार हैं। थाना पुलिस समानी चौकी में अमायदीन इलाका के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी भिंबर चौधरी मोहम्मद अमीन का कहना था कि जराइम की रोकथाम के लिए सिविल सोसाइटी का किरदार अहमियत के हामिल हैं। वादी समानी को मंशियात जैसी लानत से पाक करने के लिए पुलिस को अवामी ताउन की ज़रूरत है। उनका कहना था कि कम्युनिटी के बरवक्त ताउन से पूना में कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल को गिरफ्तार किया गया, मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। एसएसपी चौधरी मोहम्मद अमीन का कहना था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से जराइम की रोकथाम के लिए वाज़ेह पॉलिसी मुरतब की गई है। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में किसी किस्म की नरमी नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि समानी के तमाम एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा नस्ब करेंगे। पूना में जल्द पुलिस चौकी कायम की जाएगी। अमायदीन ने पुलिस की हालिया कार्रवाइयों को सराहते हुए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, जिस पर एसएसपी भिंबर ने अमल दरामद का यकीन दिलाया। जबकि इस मौके पर आला कारकर्दगी पर पुलिस मुलाजमीन और सिविल सोसाइटी के अफराद को एसएसपी भिंबर चौधरी मोहम्मद अमीन ने तारीफी सर्टिफिकेट्स और नगद इनामात दिए। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद जहीर चौधरी एडवोकेट को पासबान हुर्रियत जिला कोटली का सदर, जबकि आसिफ अली कादरी को डिविजनल सदर के साथ कोऑर्डिनेटर और फैसल मनीर को मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। पासबान हुर्रियत मीरपुर डिवीजन इम्तियाज कश्मीरी ने ओहदेदारान का ऐलान किया और उनका कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म ने नया शोशा छोड़ा है कि वो कश्मीर का नाम बदल देंगे। वो याद रखें कि कश्मीर कोई चीज़ नहीं जिसका नाम बदल दिया जाए। कश्मीर का बच्चा बच्चा कश्मीरियत की बका के लिए कमर बस्ता है और इन्हें इनकी मंजिल मिलकर रहेगी। उनका कहना था कि पासबान हुर्रियत भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाएगी। आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी रैलियां निकाल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर के हालात को इंसानी तनाज़ुर में देखते हुए अपना किरदार अदा करे। बरनाला से खबर शामिल करेंगे, जहां करोड़ों रुपए मालियत से बनने वाली कोटली बहादुर तावटाला सड़क पर हैवी ट्रैफिक की भरमार, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोटली बहादुर तावटाला सड़क एक माह भी हैवी ट्रैफिक का बोझ बर्दाश्त न कर सकी। वटाला के गिरदो नवाह में क्रैश प्लांट मशीनरी की वजह से वटाला सड़क पर ओवरलोडेड हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स की मनमानियां अरूज पर होने के बायस मकामी लोग परेशानी का शिकार हैं, जबकि तहसील इंतजामिया हैवी ट्रैफिक को रोकने में बुरी तरह नाकाम है। इस हवाले से अहले इलाका का कहना है कि ओवरलोडिंग गाड़ियों की वजह से सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है और क्रैश प्लांट से जहां वटाला के सरसब्ज रकबे को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं हैवी ट्रैफिक की वजह से वटाला सड़क भी तबाह हो रही है। और हुकूमत और महकमा शहरात इस जानब तवज्जो देते हुए ट्रकों और डंपर्स में ओवरलोडिंग पर पाबंदी आयद करे या मुतबादल सड़क फराहम करे और वटाला सड़क की मरम्मत की जाए। रावलाकोट के नवाही इलाके बंगोई सजोट में रिहायशी मकान में आतिशज़दगी, मकान लाखों रुपए मालियत के सामान समेत जलकर खाकस्तर हो गया। बंगोई सजोट के रिहायशी मोहम्मद नज़ीर के मकान में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी।
जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। अहले इलाका ने आग बुझाने की कोशिश की मगर आग की शिद्दत ज्यादा होने के बायस आग पर काबू ना पाया जा सका। शहरी का मकान लाखों रुपए मालियत के सामान समेत नजर आतिश हो गया। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतासरा शहरी की इमदाद की अपील की है। सऊदी अरब के साहिली शहर अल जबील में अरीबैन गल्फ इंटरनेशनल स्कूल के ज़ेर एहतमाम बेयाद इलामा इकबाल के हवाले से मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान के शोहरा और कश्मीरी कम्यूनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में शोहरा वजिया ज़ाहदी, नईम जावेद, असलम बदर, यूसुफ शेख, बाकिर नकवी और दिगर ने अपना अपना कलाम सुनाकर हाज़रीन को खूब महसूस किया। मुशायरे से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी अनीसुद्दीन ने कहा कि मुशायरे और अदबी तकारीब हमारी ज़ुबान और सकाफ़त के फ़रोग़ का एक अहम ज़रिया हैं। मुशायरे के इनेकाद से तहज़ीबी और सकाफ़ती रवाबित को इस्तेहकाम मिला और लोगों को आपस में मिलने जुलने का मौका भी फराम हुआ। जबकि तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर स्कूल प्रोफेसर और परवेज़ अख्तर का कहना था कि आज भी इल्म अदब और तहजीब और सकाफ़त को फ़रोग़ देने के बाब में मुशायरे की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मुशायरे के ज़रिए मेयारी शायरी और अदब की तश्कीलो तरसील को यकीनी बनाया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा है कि डॉक्टर आफिया को रिहा ना करके अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमेरिकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और उनके अमेरिकी वकील क्लाउड स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और वकील दरख्वास्त गुजार इमरान शफीक और एडिशनल अटार्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत को आगाह किया गया कि साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स में कहा कि अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है और साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ़ कर दी लेकिन हमारे कैदी आफिया को रिहा नहीं किया। और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के बैरून मुमालिक दौरों की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी गई। वज़ारत ख़ारजा ने अदालती सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी जवाब जमा करा दिया गया। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।